دل کرتا آپ کو کہوں اس بارات کے دولہا اور مستقبل کے وزیر اعظم، آج عوام نے فیصلہ کر دیا، آج عوام نے فیصلہ کر دیا۔ یہ کہتے ہیں لوکل زبان، لوکل بیچو جو نا بھائی ایک منٹ، بارش عبدالسی امیر مقام صاحب اسد سینئر رہنما بیٹھے تھے مائک ادھر ہے، یہ اے میں تو سنگ دسا آزاد کشمیر دے او پڑھاؤ آنا والا وقت پاکستان مسلم لیگ ڈھونڈتا ہے اس خاطر اس کے ساتھ جو لگا نہیں چل رہے کہ آج شمال شریف کے 3 سال باقی ہے اور آئندہ آنے والا وقت پاکستان کے اندر پھر ایک دفعہ وزیر اعظم پاکستان مسلم لیگ سے ہوگا۔ آزاد کشمیر والوں 8 سال ضائع نہیں کرنے، 8 سال ضائع نہ کرو۔ مرتضیٰ جواد واسی آخیا بارش لگی اور مرتضیٰ صاحب ایک قوم صدیاں تو انڈیا کی گولیاں کا کھل دی گیا بارش کے کارن۔ عمران خان کا ٹولہ سن لے، انشاءاللہ تعالی 27 جولائی کو انشاءاللہ تعالی پاکستان مسلم لیگ کا دن ہوگا۔ آج مقبوضہ کشمیر کے 3 لاکھ سے زیادہ شہداء کی وزارت یہ دعوت دے رہے ہیں کہ کشمیر والوں غلطی نہ کرنا، ہماری قربانیاں رائے گاؤں چلی جائیں گی اگر غلطی ہوئی تو۔ وفائے مقبوضہ کشمیر شہداء کا دن ہے اور کل 27 تاریخ کو انہوں نے مزایا میں جو آواز آ رہی ہے وہ قسم خدا آپ کرا کرو وہ کہتے ہیں اسے خون دکھا ہے، مگر عمران خان نے ہماری آئینی حیثیت ختم کی، عمران کو کہا انڈیا نے حملہ کیا، کہتے ہیں ہمارے ٹینکوں میں تیل دے۔ بھائی وقت ضائع نہ کریں گے، بیوی نہیں بھی اندر تھے، بابا نہیں بھی اندر، وہ کہہ دے کام کہتے ہیں ہمارے ٹینکوں میں تیل نہیں ہے۔ شہباز شریف کو جب پتہ چلا حملہ ہو رہا ہے، حافظ صاحب کو پتہ چلا حملہ ہو رہا ہے، نواز شریف نے کہا شہباز شریف قسم خدا کی میں نے 6 دھماکے کیے، میں نے انڈیا کے دان کھٹے کیے۔ صبح ٹیلی فون کے تاجد وقت بھائی جان السلام علیکم، آپ نے 6 کیے تھے ہم نے 7 گرا دیے، 7 نہیں گرائے، 7 مڑ کے نس گئے، پچھو پچھ جہاز جندے رہے، ہمارے پاس تیل بھی تھا، جرأت بھی تھی، مگر جہاد فی سبیل اللہ تھا۔ جس طرح استقبال کیا گیا وہی ہزاروں کی تعدادوں میں، اور پھر یہاں جو میں آپ کا مجمع دیکھ رہا ہوں تو میں ان حالات میں آپ کے اس جذبے کو دونوں ہاتھ سے سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی محبت اس طرح قائم دائم رکھے۔ اور میں آپ کو یہ دیکھتا ہوں کہ آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ الیکشن میں کشمیر آپ جیت چکے۔ میں آج کے ان حالات میں پورے کشمیر اور خاص کر اس ڈویژن میں آپ نے وہی سب کو توڑ دیا اور ثابت کر دیا کہ آپ زندہ ہے، اور پاکستان کے ساتھ آپ کا پیار محبت ہے، اور اس کشمیر کے ساتھ آپ کا بھی پیار محبت ہے، اور افواج پاکستان کے ساتھ بھی آپ کا محبت ہے۔ آج آپ نے اس پر دوبارہ سٹیمپ لگا دیا اور مہر لگا دیا، اور ان لوگوں کو میسج دیا کہ آپ کشمیریت کی بات نہ کریں، اپنے اگر ذاتی آپ کی کوئی بات ہو تو ضرور کیا کریں،
मगर यहाँ के अवाम के दिल धड़कते हैं पाकिस्तान के साथ भी और अफवाज पाकिस्तान के साथ भी। तो मैं आपके जिन अल्फाज में वही मैं कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूँ आपका और आपका शुक्रिया अदा करूँ, और जो और वादे किए गए वो भी इंशाअल्लाह ताला आप ही को मिलेंगे। आपका मुस्तकबिल, आपका बेहतरीन फ्यूचर, इस बात में मैं वही जो मुझसे पहले बात हुई बहुत तफसीली बातें हुई और मैं लंबी जाना नहीं चाहता हूँ, मगर बात यह है अगर कोई यहाँ की बात करना चाहते हैं या कश्मीरी अवाम की फलाह और बेगौर की बात करना चाहते हैं तो हम उनके साथ थे हैं और रहेंगे। मैं उन लोगों से वही जिनको गुमराह किया जा रहा है उनसे बाहर आना चाहिए और अपनी बात कर लेनी चाहिए। हम उनके साथ खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम कहते हैं आओ बात करो, मुज़ाकिरात हमारे हुए, मैं उसको लीड करता रहा। कितनी लंबी मुज़ाकिरात, कभी आए जेके में, कभी इस्लामाबाद में, इसी तरह नो माशाल्लाह आपका ये जज्बा अल्लाह ताला कायम दायम रखे। आज आपने मैसेज दे दिया, आप कई घंटों से मैं देख रहा हूँ 7-8 घंटे हो गए, 10 घंटे आप निकल चुके हैं अपने घरों से और इस टाइम तक आप बैठे रहे। लंबी तकारीर भी आपने सुने और लंबी और इस तरह हौसले और जज्बे का, तो ये आपके अंदर वही जज्बा है। आज अगर आपने रैली का नाम दिया है और हमेशा जिंदाबाद पाकिस्तान का नाम दिया है और वही अफवाज पाकिस्तान के साथ यकजहती का नाम दिया है, आपने वाकई साबित कर दिया वो एक कागजी नाम नहीं था, आपने अमली तौर आज साबित कर दिया, अपनी प्यार और मोहब्बत का इजहार कर दिया। उससे पहले बातें हुई, हमारी लीडरशिप के बारे भी बातें हुई और वही आपको अपनी माजी याद है। मैं तो यार जो घूमता फिरता हूँ 2-3 साल से, जो कुछ देखता हूँ कहता है नवाज शरीफ साहब के दौर में हुए, अगर वही नाम मायूस करे कोई चीज आपको नजर ही नहीं आएगा। और फिर शहबाज शरीफ साहब हुकूमत न होते हुए उसने भी साबित कर दिया कि आपके साथ उसका कितना प्यार मोहब्बत है। 4 दानिश स्कूलें दिए और वही 20 अरब की लागत से आप बन रहे और बनते रहेंगे इंशाल्लाह मेरे साथ। अभी मेरा भाई बैठा हुआ था, उसके बारे साकिर मजीद साहब, ये भी एक दलेर बंदा है, मुझे से और रिश्ता जो मैंने खुद भी कई दफा मौत और सब कुछ दे के आपके सामने, और उसी तरह ये शाह गुलाम कादिर साहब मौजूद है, उसको याद है कि जब हम जंग के दौरान, हम वही लोग हैं, हमारी वही पार्टी कि मुश्किल में साथ देता है, इस तरह नहीं अच्छे वक्त में साथ देता है। जंग में आ गया और जंग के दौरान हम आ गए, वही आपको याद है 28 अप्रैल 29 और हमने यहाँ से स्टार्ट ली और फिर हम नीलम वैली में गई और रात को खबर आ गई। क्या खबर आ गई? कहते हैं कि इंडिया ने ऐलान किया हमला होगा अगले रोज, और हमारे पाकिस्तानी टीवी पर भी आई, हमारे वजीर साहब ने भी कह दिया, और रात को वही लोग मेरे पीछे एडमिनिस्ट्रेशन सारे क्या पर निकल जाए रात को। तो मैंने कहा ये क्या मैसेज में दूंगा कि मैं रात को आया था और जंग की बात हुई और मैं ऐसे भाग गया। मैंने कहा हमारी तो तारीख नहीं है, ये रिवायात नहीं है, हमारे आबाओ अजदाद वही केपी से आकर अपने दी सियासत के साथ यहाँ लड़े आपके लिए। तो मैं अगर यहाँ भाई शाह गुलाम अगले रोज शाह गुलाम कादिर साहब ने जलसा रखे है और वो ये किस तरह लोग निकलेंगे, ये कश्मीरी किस तरह निकलेंगे, क्या भी खबर आई है और टीवी पर भी चली है क्या हमला होगा या बम बरसाएंगे और सब कुछ हो गया। मगर मैं अपने से आगे मैं अपनी वही बात भूल गई कि मेरा क्या हौसला है। मैं उन कश्मीरियों का उस दिन जो हौसला और जज्बा देख लिया पाकिस्तानियत के साथ और अफवाजी पाकिस्तान के साथ, ये इसी तरह निकल आ गए, वही समंदर की तरह निकल आ गए और सारे आ गए और पाकिस्तान जिंदाबाद,
अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। मैंने उसे दे राय कायम कर दी कि अगर इंडिया की ताकत बहुत बड़ी क्यों न हो, ये जज्बा किधर से लाएगा जो हमारे इन बहनों और भाइयों में। मैं इसी टाइम वही जज्बा उसी मैंने अपने आंखों से देखा, तो ये कोई नई बात नहीं। हमें फख्र है आपकी जज्बे पर, आपकी मोहब्बत पर। इंशाअल्लाह ताला बहुत लोग बात करते गलत तशरीह करा रहे हैं, ये हमें सबको याद है कि ये कश्मीर अगर आज हम क्या करे, वही दिन है बुरहानुद्दीन वानी की वही शहादत और उसकी बर्सी का। और इस तरह हमारे कई बहनें और भाइयों की शहादतें हुए, जेलों में हुए, हर जगह हुए, उन पर जुल्म वही बरसाए गए जेलों में, हर जगह। मगर उनके दिल में आज भी पाकिस्तानियत का जज्बा कायम है। उनकी शहादत होती है तो कैसे कि यह पाकिस्तानी झंडा लाओ मेरे कफन के लिए और लपेट कर मुझे इसमें दफन करे। हमको वही भी याद है, लोगों को ये न करे, हमें वही भी याद है कि वही मकबूल नाम सिपाही, वही रौला कोर्ट की बात होती है, उसकी जबान काटी गई पाकिस्तान के खिलाफ, मगर उसने कहा कि आप लिख के पाकिस्तान मुर्दाबाद, उसने अपने खून से लिखा कि पाकिस्तान जिंदाबाद। हमें वही भी याद है, फिर रौला कोर्ट की बात, हमें वही दिन भी याद है कि वही रौला कोर्ट के काले निकाले गए, मगर उन्होंने फिर भी वही पाकिस्तानियत का नाम और जज्बे से वही उनमें कायम दायम रहा। तो कोई ये बातें न करे, ये सबको याद है और सब देख रहे हैं, और आपकी उन शहादतों का हर एक को एहसास है और एहसास रहेगा, और ये रिश्ता इंशाअल्लाह ताला कायम दायम रहेगा। मैं कहता हूँ कि यहाँ कश्मीर की मसाइल का हल और हल नहीं, आपके मुंतखब पार्लियामेंट है, आपकी मुंतखब पार्लियामेंट आएगी या इंतखाबात होंगे इंशाअल्लाह ताला, वही 27 जुलाई को होंगे। ये बात, ये गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए। हम समझते हैं कि वही जिसको आप वोट देते, जिसको आप लाते, उनके पास इख्तियार होना चाहिए, उनके पास अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो आपके बारे, आपकी मुस्तकबिल के बारे आगे लेके जाए, वही बातचीत करे। तो इंशाअल्लाह ताला इंतखाबात अपनी जगह होंगे और आपको वही बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेना चाहिए, उसमें हिस्सा लेना चाहिए। और आपको मैं क्या दूंगा, आप समझदार लोग हैं कि क्या कंट्रीब्यूशन नहीं वही शेर की निशान की, इंटरनेशनली भी, नेशनली भी, और यहाँ आपकी आजाद कश्मीर के लिए भी। मैं खुद गवाह आपके साथ और जंग में कि हम सोच नहीं सकते कि इंडिया का मुकाबला किस तरह होगा, मगर वही भी शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में और वही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स आसिम मुनीर साहब की क़यादत में जो कुछ इज्जत आपको मिली, आपको आपके सोच हमारे सबके सोच से बाहर है। हम इसको हमेशा सबके ज़हन में इंशाअल्लाह ताला याद रहे, नेशनली, इंटरनेशनली और फिर लोकली कश्मीर के वही जब दौर आया आपने देख लिया है। और इंशाअल्लाह आइंदा भी हमारी ये ख्वाहिश कि वही एक्सप्रेसवेज, मोटरवेज का जाल जिसका वही बानी और वारिस जिसके नाम से जाना जाता है, उसका नाम नवाज शरीफ साहब है। हमारी ख्वाहिश है वही कैप्टन साहब की हल्के से वही मानसेरा से एक दिन शुरू करके यहाँ मुजफ्फराबाद और नीचे मीरपुर चली जाए, इंशाअल्लाह जाएगी इंशाअल्लाह ताला हमारी वही ख्वाहिश। उसने मेरे साथ बात की, मैंने कहा कोई ऐलान की बात नहीं है, हम उन लोगों में नहीं है, मगर हमारी भी ख्वाहिश है कि अगर मुजफ्फराबाद डिवीजन में एक दानी स्कूल ऊपर बन रहा है शाह गुलाम कादिर साहब के हल्के में, दूसरा आपका हक भी है इंशाअल्लाह ताला। आप सस्ता आटा भी रहेगा और सस्ती बिजली भी रहेगी और जो वादे किए गए वो भी इंशाअल्लाह ताला आप ही को मिलेंगे। आपका मुस्तकबिल, आपका बेहतरीन फ्यूचर, इस बात में मैं वही जो से पहले बात हुई बहुत तफसीली बातें हुई और मैं लंबी जाना नहीं चाहता हूँ।
मगर बात यह है अगर कोई यहाँ की बात करना चाहते हैं या कश्मीरी अवाम की फलाह व बहबूद की बात करना चाहते हैं तो हम उनके साथ थे हैं और रहेंगे। मैं उन लोगों से वही जिनको गुमराह किया जा रहा है उनसे बाहर आना चाहिए और अपनी बात कर लेनी चाहिए। हम उनके साथ खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। बात हमारी मैं उन उम्मीदवारों का वही शफकत साहब से शुरू करके और सारे अगर इनाम लेता हूँ लंबा हो जाएगा। मैं भी तहे दिल से मशकूर हूँ इस पार्टी के लोगों ने जिस डिसिप्लिन का मुजाहिरा किया, इस हल्के में नज़्म ज़ब्त का मुजाहिरा किया। मैं उनको यकीन दिलाता हूँ ये ज़ाया नहीं होंगे। हम उसका इज्जत रखेंगे, रिकॉर्ड रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपको मायूस नहीं होने देंगे कि आपके नवाज शरीफ साहब के कहने पर लब्बैक दिया और वही साकिब मजीद ने शेर निशान साकिब मजीद का भी है, नवाज शरीफ साहब का भी है, शहबाज शरीफ साहब का भी है, हम सब का है। आपने उस पर इंशाअल्लाह ताला स्टेप लगाकर वो कामयाबी हमें देंगे। आपके दूसरे दोस्त अब आप दूसरे हल्कों में हो तो आपको वही भी जाना चाहिए और हम जरूर अदा करेंगे। मैं अपनी तरफ से आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मेरा घर हो, मेरा दफ्तर हो, आपका घर भी रहेगा, आपका दफ्तर भी रहेगा। मैं आपका मदद करता रहूंगा।